Hello everyone. So in this video today we are going to talk about IIM Bangalore admission policy. A new policy has been updated for CAT 2023 students guys, right? And very important information that you should know. A big change this year in the admission policy of IIM Bangalore for first shortlisting is that graduation marks का जो weightage है वो completely remove कर दिया है, right? As per the new policy, the parameters which will be considered for the first shortlisting, right, for the interview and the GDP VAT process is that CAT score will be given a 55% weightage. ये weightage compared to previous year has been now increased, right? पहले I guess last year 40% का weightage था, but now it has been increased to 55. So CAT के score का weightage अगर increase हो रहा है, that means that's a good thing for all of you guys, right? You guys can manage. If you can get good score in CAT, good chances for you to get calls from IIM Bangalore. But then there are other weightage also. 10th के marks का weightage 15% है, 12th के marks का weightage भी 15% है, right? Generally 10th 12th में marks बच्चों के अच्छे ही रहते हैं. Work experience में 10% का weightage है. जिन students who will be having more than 3 years of experience will straight away will be getting 10 marks, right? So work experience candidate के लिए बहुत ही positive फैक्टर रहेगा ये, राइट? स्ट्रेट अवे 10% वेटेज एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स विल बी हैविंग more than 3 years, right? Okay, there is also a formula for this. I'll tell you what will be the marks you will be assigned if you are having less than 3 years. अगर आपके पास 1 year का experience है या 2 years का experience है, then how the marks will be decided in this segment, in this parameter, we'll talk about it, right, in a minute. Just take an idea here. Gender diversity का guys 5% weightage है. So out of total 100, you see that 55 is a huge weightage. Work experience है तो benefit मिलेगा, और 10th 12th के marks अच्छे हैं तो आपके calls आने के बहुत चांसेस हैं IIM बैंगलोर से, अगर आप कैट में अच्छा स्कोर लेके आओ तो, राइट? एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कैट स्कोर वेटेज एंड द वर्क एक्सपीरियंस, राइट? इसका एक फर्दर, राइट, और कैटेगराइजेशन है जो आपको जानना चाहिए गाइस. सेक्शन वाइज इंडिविजुअल वेटेज है, तो 55 मार्क्स जो कैट के स्कोर को साइन हुआ है, 55% वेटेज जो कैट के स्कोर को साइन हुआ है, आउट ऑफ दैट 55% VARC हैज़ 19% वेटेज, DILR सेक्शन में 21% वेटेज और QA के सेक्शन का 15% वेटेज है गाइस. दैट मीन्स अगर आपके DILR में परसेंटाइल बेटर रहेगा तो आपको वेटेज ज़्यादा असाइन होगा, राइट? DILR का सेक्शन देखो आप ध्यान से बचो, 21% आउट ऑफ 55 मार्क्स जो कैट के स्कोर को साइन होंगे उनका सेक्शन वाइज डिवीजन भी दिया हुआ है. VARC का 19, DILR का 21 एंड QA का 15. तो DILR में अगर आपका परसेंटाइल बेटर है तो आपका वेटेज, परसेंटेज वेटेज जो कैट के स्कोर को जाएगा वो ज़्यादा जाएगा. सो DILR is something that you should definitely be getting 99.9 plus, right? अगर आप इसमें ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. QA के कंपैरिजन में ये वेटेज काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, राइट? आउट ऑफ 55 मार्क्स सिर्फ 15 मार्क्स ही QA को असाइन किए, DILR को 21 मार्क्स है और देन 19 मार्क्स वर्बल एबिलिटी को असाइन किए. और वर्क एक्सपीरियंस का जो फंडा है बच्चों, राइट, 36 मंथ इज द हाईएस्ट वर्क एक्सपीरियंस. मोर देन 36 मंथ you will straight will be getting 10 marks, right? Let's say that you have 2 years of work experience. So how the marks will be assigned? 2 years out of 3 years. 36 month is 3 years, right? So 2 years out of 3 is 2 by 3. That is 66.67%. So 10 points का 66.67%, that means आपको 6.67 मार्क्स मिलेंगे. Let's say कि आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस है तो 1 year is 12 month. 12 month out of 36 is 1/3. तो 10 के 1/3 that means 3.33 मार्क्स आपको साइन होंगे, राइट? सो वर्क एक्सपीरियंस का बेनिफिट रहेगा. 1 year 2 year में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो थोड़ा कम वेटेज, कम मार्क्स आपको मिलेंगे, बट 3 years और 3 years से अबव है तो विल बी गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स हियर, राइट? सो ये दो चीज़ें अगेन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर IIM बैंगलोर. फाइनली द फाइनल मेरिट लिस्ट जो गाइस, फाइनल स्टेज में जो लिस्ट बनेगा उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हो कि आपके कंट्रोल में एट दिस मोमेंट. कैट के स्कोर को 25 का वेटेज है आउट ऑफ 100, राइट? और PI को 35. सो 35 प्लस 25 is 60%. So 60% weightage is in your hand at this moment, right? So CAT में अच्छा परफॉर्म करो, PI में अच्छा परफॉर्म करो. 10th के स्कोर को 10%, फिर 12th के स्कोर को भी 10% weightage. यहाँ पे अगर आप ठीक ठाक हो तो you have good chance for IMB conversion. Then VAT is also that is in your control. अगर आप VAT में अच्छा करते हो तो 10% weightage हो रहा है.
वर्क एक्सपीरियंस गाइस, राइट? फाइनली यहाँ पे आके वर्क एक्सपीरियंस को भी 10% का वेटेज रहेगा, राइट? सो ये फाइनल सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट है बच्चों, राइट? सो आउट ऑफ टोटल यहाँ जेंडर डाइवर्सिटी को नहीं मिलेगा कोई भी मार्क्स, राइट? वर्क एक्सपीरियंस को 10, वैट को 10, पीआई को 15, 12th को 10, 10th में 10% और कैट स्कोर में 25, राइट? जेंडर डाइवर्सिटी सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेज में वेटेज मिलेगा, नॉट इन द सेकेंड स्टेज, राइट? 5% का वेटेज फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड में नहीं है। सेकेंड में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जीडीपीआई वैट के लिए, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अनदर इन्फॉर्मेशन दैट ऑल ऑफ यू शुड नो इज अबाउट द सेक्शनल कट ऑफ गाइस, राइट? सेक्शनल कट ऑफ ये स्पेसिफिकली मेंशन है दैट लेट्स से कि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है IIM बेंगलोर के लिए, बट अगर आप ये सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो देन यू विल नॉट बी गेटिंग द कॉल। VARC में मिनिमम 80 परसेंटाइल चाहिए, DLR में मिनिमम 75, QA में मिनिमम 75, ओवरऑल आपका 85 से ऊपर होना चाहिए। बट जब हम मेरिट लिस्ट की बात करेंगे डजंट मीन कि 85 से अबव हर स्टूडेंट को कॉल आ जाएगा, राइट? कि आप यहाँ पे 82 ले आओ, यहाँ 80 ले आओ, यहाँ 80, यहाँ पे आपका लेट्स से कि 90 है। इट्स नॉट दैट यू विल बी गेटिंग कॉल। वो फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगा ना, राइट, तो उसमें जो टॉप कैंडिडेट हैं जितने स्टूडेंट्स को उनको कॉल करना है, तो वो कट ऑफ वुड बी डिफरेंट। दिस इज अ मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया। इसके बिना विदाउट दीज मैनी मार्क्स दे विल नॉट बी इवन कंसिडरिंग यू फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग, राइट? शॉर्ट लिस्टिंग पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा दैट जनरली गोज 99.5 plus for IIM Bangalore, but this is a minimum criteria that you need to fulfill guys, right? Fulfill, right? So ये ऐसे ही category wise students के separate section wise है, you guys can refer to this whole slide, right? Thank you so much for watching the video. So this was the update for IIM Bangalore admission policy guys. There's a good thing that graduation marks have been removed, so you guys can, students with low academic scores can do good in CAT score and PI and VAT, and you guys can definitely get yourself selected in IIM Bangalore guys. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.